Yes, good afternoon all. This is a request to everyone, keep your camera in the working mode. So in the last class, we were working on the queries. Clear? And one query is left in that section. Yes, Vanshika, list है तुम्हारे पास list of that queries जो हम कर रहे थे. Yes. Now you can unmute. Yes, sir. Last कौन सा question है हमारा? To display the unique section available in the table. Yes. So how to fetch the unique sections by using a query. So कुछ idea है इस query के बारे में आपको? Yes, sir. By using the distinct. Yes, yes. So I will just open the interface now. So still I think number of windows are open. So yes. So I am just going to open the table. So before that, what we need to do, we need to use the appropriate database. So show databases, and here we have use
811 and here select from the appropriate table, that is the student table. Clear? And here you have to tell me about what will be the query I need to write here. Select distinct sections. How? Distinct section. So distinct keyword na. Distinct section. Section is the name of the attribute. And From student. yes, from student. Next. That's all. Yes, sir. Yes, so by this we'll be able to fetch the distinct means अलग-अलग जो हमारे पास different sections है, 4 ही sections थे, A, B, C and D sections. These are the sections we have. So with this we have basically completed the practicals of Python as well as the practicals of data management. Clear? So for practice purposes we can take more queries also. But these are the practicals which are the part of our syllabus. Still, if you find any doubt, and पहले तो ये है कि हमें queries के ऊपर जितनी maximum queries की हम practice कर लेंगे, so that will be helpful for us. अब मैंने आपको पहले बताया था कि MySQL में score करना comparatively easy है as compared to Python, because in Python we cannot basically fix the programs. Clear? But here the number of queries are limited as topics भी हमारे पास कम है if we look at the syllabus also. Still किसी का कोई point है related to MySQL? Anything you want to discuss? So that was the last. हाँ जी सर. हाँ जी सर मैंने ना प्रैक्टिस की थी तो मुझे प्रॉब्लम आई थी डेट ऑफ बर्थ में सर. अगर मैं 000 हाँ जी सर 00 में फिल करूं तो वो रजिस्टर हो जाता था सर. पर अगर मैं जैसे 2004 लिखूं फिर उसके बाद मंथ लिखते हैं उसके बाद डेट लिखते हैं है ना सर, तो फिर करता हूं तो फिर आता ही नहीं सर, फिर एरर आते हैं बार बार सर. नहीं ऐसे कैसे? जो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है, हो सकता है आपने कोई डिफरेंट फॉर्मेट सेट किया हो. जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डे है. तो नहीं सर अगर सर प्रॉब्लम होती तो मैं फिर 00 वाला किया था सेम फॉर्मेट में, उसमें भी प्रॉब्लम होनी थी. आप कोई स्नैपशॉट मेरे को सेंड कर देना, स्नैपशॉट से देख लेंगे क्या. सर भेज दिया आपको सर मैंने. हाँ जी ठीक है, आई विल चेक इट आउट ना. यस सर. Yes, anyone else who has made it? Yes, Vanshika, you want to say something? Yes. Sir, I also face the same problem. क्या? तो मेरे को लगता है ये देखो ना, आप पहले डेट का फॉर्मेट देखो, that is we need to maybe यहाँ पे देखो ये डेट का जो फॉर्मेट है, that is this is the format ना. तो आप ये देखो कि डेट का फॉर्मेट जब आप उसमें डिस्क्राइब करके यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, तो डेट ऐसे डालती सर. क्या तो बाद में क्या है कि हमारे पास फॉर्मेट को चेक करने के लिए कमांड भी है, आई नीड टू चेक इट आउट. तो हम उसका डेट का फॉर्मेट रीसेट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चेक करना पड़ेगा आप लोगों को कि डेट का फॉर्मेट क्या है वहां पे सेट किया हुआ. ठीक है, तो ये भी हो सकता है बिकॉज कई बार हम डे पहले ले लेते हैं, मंथ बाद में ले लेते हैं. सो यू नीड टू फर्स्ट चेक इट आउट व्हाट इज द डेट फॉर्मेट इज सेट. आप उसको रीसेट भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी डेट का फॉर्मेट सेट कर सकते हो, मंथ ईयर कहीं पे भी आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. क्लियर? तो फर्स्ट वी नीड टू सेट दी जहां पे डेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है वो फॉर्मेट में प्रॉब्लम आ रही है, डेट फॉर्मेट. Yes, any other difficulty you faced? ठीक है, डेट में वैसे भी थोड़ा डेट में वर्कआउट करना थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज वी नीड टू बी इतने हम कैलकुलेशंस हम डेट के ऊपर करते नहीं है. सो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस व्हेन वी आर वर्किंग विद द डेट फॉर्मेट. तो वो जो प्रॉब्लम होगी वो डेट फॉर्मेट की होगी. वंशिका आप भी सेंड कर देना जहां पे आपको डिफिकल्टी आ रही है. सो यू सेंड दी स्नैपशॉट. सो आई विल डिस्कस टेल यू द स्टेटमेंट बाय व्हिच यू कैन चेंज द फॉर्मेट आल्सो.
तो उसको नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दिस आउट. Yes. So last in the theory section, we were discussing about the blockchain management. So who will initiate the discussion on the blockchain management? So I am going to share you the PPT. So cloud computing we have already gone through, and presently we were focusing on blockchain. So I am going to share you the screen. So in the meanwhile, who will say a bit on this blockchain management? Clear. So this is the blockchain broader way how it basically works, and how the transaction works out. And basic हमने इसके अंदर discuss किया था कि it works on the decentralized model. What is the decentralized model is? हमने पहले भी डिस्कस किया था अबाउट दिस. मैंने स्पेसिफिकली बोला था डिसेंट्रलाइज्ड कैसे मॉडल कैसे काम करता है, एंड आई गिव यू द एग्जांपल दैट Sir, where the data is not centralized at one place and that each person can. Yes. And each person can access the same data. Same data, and you know the another important thing is that if one of the server goes down, so the system does not goes to a halt. Clear. The load is shared among the other servers. Clear. So that is the basic property of a decentralized model, and the blockchain management also works on this. So from here a transaction is requested, and this transaction goes this is the broadcasted to a peer-to-peer network. So it goes over a network, or the nodes validates the transaction using algorithm and validate the user. तो user को वो validate करेगा, और प्लस वो transaction जो algorithm है वो transaction को validate करेगा. ठीक है जी. And no, इसके अंदर जो हम we make a transaction where we are going to a varied transaction holds the cryptocurrency. So cryptocurrency, ये जो हम Bitcoin की बात कर रहे थे, that is the example of a cryptocurrency. Clear. That is the digital currency that we have, and user records. ठीक है जी. And then that transaction, that yes. Keep yourself muted, beta. भाजी आ गया मैं आ गया, टेंशन मत लेना, फिर करूंगा इसमें ना चल जा तू. हाँ चलो. And in the last leg, here the transaction is combined with the other transaction to build a block. So that is the basic block that is being built, and then is this new block is added to the blockchain permanently. And you know, this is how the new blocks are made, and that's why this is called the decentralized, works on the decentralized model, and the transaction is done. So basically ये जो technology है, that is nowadays a lot of work is being done on this technology, and government is also putting up a lot of thrust on this, like जैसे AI is the technologies of the day. Similarly blockchain management है, big data है. So these are the latest technology on which a lot of work is being done nowadays. So moving back to this PPT. Clear?
इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास सिलेबस में है, ये वी हैव टू बेसिकली डिस्क्राइब अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दैट्स ऑल। एंड द नेक्स्ट इससे जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड द ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है हमारे पास, दैट इज द नंबर ऑफ मशीन्स आर दे वर्क in an interconnected environment. So grid computing is a computer network in which the computer's resources are shared. Clear? तो ग्रिड में यही काम होता है that where the resources are basically shared. तो इसमें रिसोर्स क्या है हमारे पास, the resource are the computers. तो इसमें प्रोसेसिंग पावर शेयर होती है आपस में। The processing power, memory and data storage are all community resources authorized users can tap into and वर्क यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो इसमें ग्रिड कंप्यूटिंग में होता क्या है कि दैट इज मल्टीपल मशीन्स आपस में मिलके काम कर रही हैं, क्लियर, एंड द लोड इज शिफ्टेड। जैसे एक मशीन के पास एक मशीन को अब ज्यादा मेमोरी चाहिए बट ही हैज द लिमिटेड रिसोर्सेज। सो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, मेमोरी, स्टोरेज एंड द प्रोसेसिंग पावर दैट इज बेसिकली शेयर्ड अमंग द डिफरेंट मशीन्स। तो इसमें बेसिकली एक पूल तरह बन जाता है, इन ए पूल दैट वी हैव नंबर ऑफ मशीन्स दैट वर्क टुगेदर। तो इसका मॉडल ही ऐसे होता है जिसमें मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर एंड डाटा स्टोरेज, व्हाई दे आर कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज, बिकॉज ऑल दीज रिसोर्सेज आर शेयर्ड। एक सिस्टम में यही हमारे पास की रिसोर्सेज होते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या है हमारे पास, एक प्रोसेसिंग है, दूसरा मेमोरी है, विच इज दिस मेमोरी, दिस वी आर टॉकिंग ऑफ memory is basically the main memory, and then is the data storage where we think of the hard disk like this. Clear? तो grid computing में क्या है, that the number of machines they work together, और जो दूसरे एंड पे पर्सन है उसको नहीं पता चल रहा कि मल्टीपल मशीन्स काम कर रही हैं या सिंगल मशीन काम कर रही है। उसको तो ऐसे ही लगेगा कि दैट इज ही इज गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम ए सिंगल मशीन, बट इन ए ग्रिड कंप्यूटिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क्स वर्क्स एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज शेयर होते हैं, प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड द डाटा स्टोरेज। सो नो विद दिस वी फिनिश अप विद द इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट था। इस यूनिट में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी, कहां से स्टार्ट किया था हमने, कोई ब्रीफ कर सकता है इसको, कौन कौन से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर हमने टॉपिक्स पढ़े। सो आई विल जस्ट अलाउ यू टू अनम्यूट। यस, so anyone who can briefly tell about the different technologies that we have discussed in the last couple of years। एक तो क्या है, हमने साथ साथ में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी किए हैं। so we have not focused upon the single unit, we have worked upon the theory as well as the practical side। तो थ्योरी में एक हमने बिग डाटा के ऊपर फोकस किया था, क्लाउड कंप्यूटिंग आया था इसमें, अभी हमने ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन और ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर हमने बेसिकली उसका मॉडल हमें पता होना चाहिए। वी डोंट हैव टू गो इनटू टू मच डेप्थ ऑफ ऑल दीस टॉपिक्स। यस, एनी अदर टॉपिक दैट वी हैव, एक हमने जो शुरू में स्टार्ट किया दैट इज द एआई, और एआई के अंदर जो है हमने दैट इज वी हैव बेसिकली डिस्कस द एनएलपी एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एआई। क्लियर? तो ये थ्योरी वाले जितने टॉपिक्स हैं दैट इज यू शुड बी फेमिलियर विद द ऑल द मेजर टर्म्स, और इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दीस टॉपिक्स यू हैव टू राइट द short sort of a answers over there. Yeah, so I think there is a query by Mr. Gurleen. हाँ जी सर, मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझा दो सर। कैमरा ऑन करो अपना। सर यहाँ नहीं सर, यहाँ सफाई सुई काम चल रहा है सर, छोड़ो बड़े काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन, इसलिए नहीं ऑन कर रहा हूँ। हाँ चलो बताओ सर, वो थोड़ा रिपेयरिंग का काम है। हाँ जी सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझाना सर एक और बात। चलो एक बार अभी किसी से ले लेते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है। सो जस्ट लुक एट दैट। ठीक है, तो बेसिकली ये है मैकेनिज्म किस लिए है, दैट दिस मैकेनिज्म बेसिकली रेफर्स टू द ट्रांसपेरेंट
and publicly accessible ledgers. तो बेसिकली सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए हम ब्लॉकचेन मैकेनिज्म को यूज करते हैं, एंड दैट इज द ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ यूनिट्स ऑफ वैल्यू यूजिंग द पब्लिक की एन्क्रिप्शन एंड प्रूफ ऑफ द वर्क ऑफ मेथड्स. सो हियर इन दिस टर्म the important concept of encryption is used. Encryption में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो तरह का टेक्स्ट होता है. वन इज आई हैव टोल्ड यू प्लेन टेक्स्ट एंड encrypted text. तो प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट जैसे मैं पढ़ रहा हूं, सो दैट इज द प्लेन टेक्स्ट वी हैव. तो फॉर मेकिंग ए सिक्योर ट्रांजैक्शंस वी नीड टू कन्वर्ट the plain text to the encrypted text so that no one can basically straightforward decode or hack that particular data. So that is the basic of this blockchain technology. So this uses the decentralized consensus. तो जो इसमें मैकेनिज्म यूज होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म यूज होता है, बिकॉज देयर इज नॉट ए सेंट्रलाइज्ड सर्वर जहां पे रिलेटेड टू ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन जो हैपन होगी. सो दिस वर्क्स इन ए डिसेंट्रलाइज्ड, बिकॉज व्हाई वी नीड टू वर्क अपॉन द डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका हो, और जो इसका बेसिस है दैट इज द डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी. एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज द इंटरनेट. तो इंटरनेट है दैट आल्सो वर्क्स. समझने के लिए हमें कि अगर हमने ब्लॉकचेन को किसी के साथ, डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी को किसी के साथ कंपेयर करना हो तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, विद द इंटरनेट. दैट इंटरनेट आल्सो वर्क्स अपॉन द डिसेंट्रलाइज्ड. ठीक है, तो जितने ये सर्वर्स हैं, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, सो उसके अंदर ये है कि वो वेबसाइट्स एक कंट्री के अंदर नहीं है, उसकी रेप्लिकास आर अवेलेबल ऑन इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, जैसे गूगल है, तो गूगल को आप यूएस से थोड़ी एक्सेस कर रहे हो. सो गूगल वेबसाइट इज अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसकी जो रेप्लिका है दैट इज अवेलेबल ऑन डिफरेंट वेब सर्वर्स. So the technology that is basically works upon the decentralized consensus, and to maintain the network means not centrally controlled by a organization. तो कोई भी organization इसको centrally control नहीं कर रही. So that is the latest technology on which a lot of work is being done nowadays. तो दो तीन key points हैं इसके बारे में. क्लियर? तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें तो एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म यूज होता है, दूसरा इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म यूज होता है, एंड यू नो दैट दिस मॉडल बेसिकली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज्ड decentralized transaction model. ठीक है, एंड a lot of work is being done in this blockchain technology. जैसे बिग डाटा भी एक अपने आप में फुल फ्लैश टेक्नोलॉजी है, सिमिलरली ये ब्लॉकचेन भी is a technology in itself. Yes. So ये a lot of cameras are off today. मुस्कान, अरुमन, तरुणजोत, प्रियंका, अभिनंदन, जसलीन. Clear? So today from the theory point of view, we have basically covered one more. This is the first unit that we have covered upon. So there is one more unit that is left. I will show you that which syllabus we need to work upon next. तो सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट है हमारे पास, so you can see this is the syllabus that we have. So which topic now we are left with? कौन बताएगा? सिलेबस है किसी के पास? Anyone is having the syllabus? और किसी के पास, चलो किससे, ये हर्षदा से पूछते हैं. हर्षदा, तुम्हारे पास सिलेबस है?
यस हर्षिता 11E करो बेटा। हाँ यस नो सर। तो सिलेबस ही नहीं है। हाँ बिना सिलेबस के ही। यस महक जो सर पढ़ा दें सत वचन है, जो सर पढ़ा देंगे हम उसको सिलेबस मान लेंगे। यस महक सिलेबस है। सर आई एम यूजिंग पीसी राइट नाउ हाँ पर इट इज इन मोबाइल। अच्छा 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 ये बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर मोबाइल में है तो हम पीसी यूज कर रहे हैं। सो अच्छा किसी के पास है सिलेबस? अमरवीर इज सेइंग यस। यस अमरवीर से पूछ लेते हैं। अमरवीर आप बताओ। So we have done introduction to emerging trends. We have done SQL and Python. We are left with introduction to computer system. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम ये लेफ्ट है ये सर कर लिया सर, सारे कर लिया सर। कर ली All done, all done. All- तो ये All देखो clear and all. नहीं ऑल क्लियर ना बोलो, इससे तो ये बड़ा थ्रेटनिंग वर्ड है। ऑल क्लियर इज अ वेरी डेंजरस वर्ड। तो हमने ऑल क्लियर के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो यू नो फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू many of the topic we have done multiple times. Clear? So almost the syllabus is now done. एक ये जो प्रैक्टिकल हमारे टॉपिक अभी हमारे पेंडिंग थे, so today we finished with the last practical. आप प्रैक्टिकल भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो आज लास्ट क्वेरी जो वंशिका ने सॉल्व की है, so I think that was the last query. That is the query number 26. Yes. So you can also work upon on your practical अपनी सॉफ्ट कॉपी वगैरह रेडी रखना सारे, ठीक है। So whenever the schools are on और जब आपको required है, so you can basically work upon. So similarly we can start working on the next time once more and जो प्रोग्राम अभी तक हमने नहीं किए हैं, so we can focus upon on those programs also, ठीक है। तो रिवीजन तो हम जितनी बार मर्जी करते जाएंगे, बट द की थिंग इज देयर। अब देखो अब आप लोगों का सिलेबस खत्म हो गया है, तो ये नहीं कि घूमने चले जाना है सभी ने। द इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, दैट इज यू कैन फोकस अपॉन द +2 आल्सो, ठीक है। कीपिंग इन माइंड द वर्क वी नीड टू डू इन +2। तो उस वे से अगर हम देखो प्रोग्राम्स में इतनी वैरायटी है और हमने सारे इजी प्रोग्राम किए हैं अभी तक, सो वी कैन वर्क अपॉन द डिफिकल्ट प्रोग्राम्स आल्सो। एंड जितना पर अगर हम अभी काम कर लेंगे, सो देन यू विल बी कंफर्टेबल इन +2 आल्सो। जैसे +2 में आप लोगों को पता है यू हैव टू वर्क अपॉन ए प्रोजेक्ट आल्सो। तो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए हमारे जितने कंसेप्ट पाइथन में अच्छे होंगे, उतना ही हमें +2 में काम करना उतना रिलेटिवली इजी होगा। और इस बार तो सीबीएसई ने बहुत सारा सिलेबस माइनस भी कर दिया। जैसे नमपाई हमारे पास एक टॉपिक था पाइथन में, वो भी माइनस कर दिया सिलेबस में से। सो ये नहीं है कि अगर हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो वी शुड थिंक अपॉन इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जिसका अभी प्रोग्रामिंग वीक है, क्लियर। सो ये नहीं है कि अभी हमने काम करना बंद कर देना है। सो वी हैव ऑलमोस्ट द सिलेबस इज डन एंड वी कैन रिवाइज द बिट डिफिकल्ट टॉपिक्स आल्सो इन द डेज टू कम। यस, कोई आप लोगों का बेटा कोई पॉइंट है? क्योंकि अभी देखो हमारी क्लास में एक तो बड़ी हेलो सर। हाँ जी हाँ जी यस। नहीं सर आप बोलो सर, पहले मैं बोल देता हूँ। तू तो थोड़ा रेस्ट किया कर, क्लास के अंदर सबसे ज्यादा तेरी क्वेरी होती है, ठीक है। सो माय एम इज दैट देयर शुड बी ग्रेटर डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन इन द क्लास। तो बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं है क्लास के अंदर। अभिनंदन, यस अभिनंदन, ये कैमरा खराब हो गया है तुम्हारा? अब कैमरा इज ऑन बट वो विजिबल नहीं है किसी को। अच्छा अच्छा, मेरे को लगता है ये शक्तिमान मोड में काम करता होगा ना, ये तो दिखाई शायद मेरे से सेटिंग्स चेंज हो गई है। अच्छा तो सेटिंग ठीक करो बेटा, रोज थोड़ी सेटिंग खराब रहती है, एक आधे दिन लगा के सेटिंग ठीक भी करो। बाद में कल आपको बोलेंगे कि आईपी क्लास लगाते हो, सेटिंग भी ठीक नहीं करनी आती आपको, ठीक है। तो कल आपका ये कैमरा मुझे पता नहीं लग रहा कौन सी सेटिंग्स करूं। चलो ठीक है। वो पता नहीं मैंने खुद ही शायद कर दी थी यार, ऐसे हो गया। मैंने अनइंस्टॉल करके सर रीइंस्टॉल भी किया था ऐप, तब भी ऐसे ही हो रहा है जब वो प्रिंसिपल सर के साथ मीटिंग थी ना। अच्छा अच्छा
चलो कोई मेरा बात कैमरा नहीं, ऑन हो रहा था पहले। टाइम है बेटा। एक्चुअली क्या है, बिकॉज मल्टीपल क्लासेस होती हैं, अब तो क्लास में ये भी बोलते हैं जिसका कैमरा नहीं चल रहा उसको क्लास से बाहर करो, बट स्टिल आई एम गोइंग अवे विद दिस वन। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्लास लगा नहीं रहे, दोज हु आर एक्सपर्ट इन सी एंड सी प्लस प्लस, तो वो कहाँ पे चले जाते हैं हमारी क्लास के? यहाँ पे तो सिर्फ पाइथन वाले बंदे आते हैं, और सी सी प्लस प्लस वाले कहाँ पे रहते हैं? और यस, ह्यूमैनिटीज में से मेरे को लगता है सिर्फ मुस्कान ही अटेंड कर रही है, या एक आधा कोई और स्टूडेंट होगा। बाकी बच्चे, जो हमारी YouTube वाली क्लास थी वो तो बड़ी पॉपुलर थी, उसमें मैं जब अटेंडेंस लेता था 5-10 मिनट मेरे तो अटेंडेंस में निकल जाते थे, ठीक है। और इसमें क्या रीजन है, दैट इज व्हाई दी पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग दिस? यस वंशिका, आप बताओ। I don't know why they are not joining. बेटा थोड़े डिसएडवांटेज बता दो ना, कि ये हमारी जूम वाली क्लास के डिसएडवांटेज है, तो इसलिए बच्चे जो है इस क्लास में आ नहीं रहे। एंड देखो मैं आपको बताता हूँ कि YouTube की क्लास का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था कि उसमें तो बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर वो 3-4 बार मेरे को बोल देंगे, जब मैं क्लास में पूछूंगा क्लियर है, यस सर, वो यस सर करके, तो वो सिनेरियो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि यस सर करके जो टीचर का मोटिवेशन लेवल है वो बड़ा ऊपर चला जाता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा समझ आ रही है। तो ये बाद में पता चलता है कि समझ आ रही है या ऐसे बोले जा रहे हैं। यस तरुणजोत, तरुणजोत आप तो रिलैक्स कर रहे हो ये। और अब तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, दैट इज यू कैन थिंक ऑफ कमिंग इनटू द स्कूल आल्सो। तो क्या व्यू है आप लोगों का? यस तरुणजोत, करो अनम्यूट करो बेटा। सर कोरोना हाँ yes, so we'll take up the, yes Bhavya, you have given a send for coming to the school or not? No, so very comfortable in the Zoom format, isn't it? कितने हैं इंटरेस्टेड आप लोगों में से स्कूल आने के लिए? यस मुस्कान इज सेइंग यस। तो अभी मेरे को लगता है कम बच्चे हैं इंटरेस्टेड फॉर कमिंग इनटू द क्लास। यस महक। No, sir. No sir, so yeah, so means you are very comfortable in this online format. ठीक है, चलो बढ़िया है। दैट इज नो इन द डेज टू कम नाउ दिस वे विल आल्सो बी वन ऑफ द मेथड। ये स्टे कर जाएगा मेथड धीरे धीरे करके, चाहे कोविड रहे ना रहे, मेरे को लगता है ये ऑनलाइन मेथड स्टे कर जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज वी आर इन दी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। तो घर पे आके जब मर्जी चाय भी आ जाए साथ में, ठीक है, और कंफर्ट लेवल ज्यादा है। यस अमरवीर, यू वांट टू से ऑन दिस? So actually, we are not very comfortable with the online platform with the coronavirus. We don't know, we cannot go out. Yes, But yes. we have to stay in home, but we don't want to stay in home. Okay. So that is due to the threat of this coronavirus. For the safety measures, you are staying on this online classes. चलो ठीक है, बढ़िया है बेटा। That is no, the very fundamental point is that this is a voluntarily option ना। ये आपको choice है that you want to remain at home or you want to come into the school. That is not a compulsory, ठीक है। So that is नहीं, आपको एक एडवाइस है that if you basically ये बेस ज्यादा जो 10th वाले बच्चे हैं बोर्ड वाले, I think they will be eager to come to school rather than the 9th and +1 students. और देखो सबसे पहला तो कंसर्न है, मींस the safety should be the very first concern, ठीक है।
इंडिया में जब लॉकडाउन लगा था तब तो इंडिया में को कोरोना वायरस के 400 केस थे। अब 400 केस तो डेली एक पंजाब में ही आ जाते हैं डेली। सो डेफिनेटली द थ्रेट इज देयर एंड वी शुड बी, अगर ऑप्शन है सो वी शुड यूज द ऑप्शन वाइजली, देयर इज नो डाउट इन दैट। क्लियर? सो आई थिंक दैट टुमारो विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, तो प्रोग्रामिंग के ऊपर ही फोकस करेंगे, ठीक है जी? सो हेलो सर। हाँ जी आप पूछ लो भाई। हाँ जी सर, सर जैसे वेरकर मैं यूज कर रहा था अभी, तो इसमें जैसे मैं लिखा 0001 है ना सर, तो आउटपुट सिर्फ आता है 1। भाई ऐसे नहीं मेरे को समझ आएगी ना, आप मतलब कि कंसेप्चुअली मैं कहाँ पर डिसाइड करूंगा आप 00 कहाँ पे प्रेस करी जा रहे हो। सो यू सेंड मी योर क्वेरी, अच्छा सर, अच्छा सर आता हूँ। आप मेरे को स्नैपशॉट उसकी भेज दो। ऐसे क्लास में किसी को नहीं पता चल रहा ना कि क्या हो रहा है, गुरलीन क्या बोली जा रहा है, नवदीप सर क्या बोली जा रहे हैं। सो यू सेंड मी दी ऑन दी इंडिविजुअल फॉर्मेट, ठीक है? सो क्लास के बाद आप मेरे को सर वो, हाँ और सर वो डेट वाला रिजॉल्व हो गया सर अभी। चलो वो सर उसको ना ब्रैकेट में इंक्लोज करो और वो हो जाता है एग्जीक्यूट। ठीक है। सो ये देखो, ये हाँ जी सर, पहले सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द क्लास। सो विल मीट टुमारो। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।